Assalamu alaikum. Welcome students. We are discussing about Q data structure. Qs. In last class we already discussed what is Q and what are the operations performed on Q and memory representation of Q using array and linked list. Now we will see algorithm for insertion algorithm. Insertion. Algorithm for insertion. Insertion means we are adding one element into the queue. We also call it as NQ. NQ. NQ is nothing but it is an operation in which we are adding a new element into the array. Sorry, into the queue. That is NQ. In that, the main points you should represent. We are using two variables. That is pointer variables. One is friend. Another one is rear. Rear and friend. Here, rear represents the deleting element. Deleting element. Which element we are deleting? That is represented by friend. And rear element, where we are inserting the element. Inserting. Where we are inserting, that is represented using rear variable. Here, if front, when we created new array, new queue, when we are created, at that time both front and rear, both are declared or defined as null. Initially it is null. This means when front value or rear value is equal to null, that means the queue is empty. There is no element in the queue. This is front and rear. If rear is equal to n minus 1. N is nothing but here number of elements in the queue. Maximum elements, how much elements we can insert into the queue, that is represented by 1. If rear is equal to n minus 1, then the queue is full. Queue is full. That we call it as overflow. Overflow. Remember this name. Overflow and underflow. Underflow. These two we are defining. Overflow means nothing but when we are inserting a element into a queue which is full. There is no empty space in that. At that time we call it as overflow. Underflow means when the queue is empty, at that time we are trying to delete one element from the queue. That is underflow. Clear? Overflow means likewise in a jug, water is there, it is already full. Again, if we try to pour the water in that jug, what happened? The water will be overflow. That is overflow. Underflow means there is no water in the jug. We want the water from the queue. At that time, what we call that underflow. Clear? When front and rear both are null, दो भी जब null होंगे, इसका मतलब है the queue empty है. Queue is empty. We cannot delete any element from that. When the rear is equal to n minus 1, n means maximum number of elements in the queue. इसके n minus 1, for example, we already know array के बारे में जानते हैं. 10 elements हम insert कर सकते हैं, तो index value होगा maximum 9. यही है n minus 1. जब ये मैक्सिमम अपर बाउंड रीच हो जाएगा, इसका मतलब है क्यू इज फुल. और एक वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते. इसे हम कहेंगे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो. जब फ्रंट इज इक्वल टू रियर हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू रियर मतलब हम ये अरे के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते जा रहे हैं. इसका मैक्सिमम 10 था, 10 इंसर्ट करना चाहते थे, हम 10 इंसर्ट कर दिए या 8 इंसर्ट किए. अब हम ये भी डिलीट करते गए, मतलब जैसे डिलीट करेंगे फ्रेंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी. इनिशियली फ्रेंड की वैल्यू 0 थी, नल थी. जब हम एक वैल्यू डिलीट करें तो उसकी वैल्यू 0 होगी, उसके बाद 1 2 इस तरह से बढ़ते बढ़ते रियर जितना होगा उतना. फॉर एग्जांपल रियर की वैल्यू 9 था, मतलब हमने या ऐसे समझो रियर वैल्यू 7 है. 7 हमने इंसर्ट किए थे उसके अंदर.
एक एक हम डिलीट करते करते जब फ्रंट की वैल्यू वी आर इंक्रीजिंग इट रीचेस टू द 7, मतलब रियर वैल्यू और फ्रंट वैल्यू दोनों बोथ आर सेम। इसका मतलब है हमें इंसर्ट किए थे और उसे डिलीट भी कर दिए, सारे हम एलिमेंट्स को डिलीट कर दिए, तो फिर से क्यू हो गया एम्प्टी, क्यू फिर से एम्प्टी हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट और रियर को हम इनिशियलाइज कर देंगे नल, फ्रंट और रियर की वैल्यू नल कर देंगे। ये है मेन कॉन्सेप्ट इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग के अंदर। फ्रंट रियर दो वेरिएबल, फ्रंट रिप्रेजेंट करेगा डिलीटिंग एलिमेंट, रियर रिप्रेजेंट करेगा इंसर्टिंग एलिमेंट लोकेशन। जब फ्रंट इज इक्वल टू और रियर इज इक्वल टू नल होगा, इसका मतलब क्यू एम्प्टी है, देयर आर नो एलिमेंट्स इन दैट क्यू। जब रियर इज इक्वल टू n-1 होगा, क्यू इज फुल, मैक्सिमम वैल्यूज पे आर इंसर्टेड। फ्रंट इज इक्वल टू रियर हो जाएगा, इसका मतलब हमने जो इंसर्ट किए थे एलिमेंट्स उसे हमने डिलीट कर दिए पूरे, वी आर डिलीटेड ऑल द एलिमेंट्स। सो हम क्या करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू नल कर देंगे। लेट्स विल सी द एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन। इंसर्शन एल्गोरिथम चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप जब भी इंसर्ट करेंगे हम क्या चेक करेंगे, वी आर चेकिंग द क्यू इज फुल और नॉट। इंसर्ट करने से पहले देखना है उसमें जगह स्पेस है या नहीं। ऐसे समझिए आप एक बस के अंदर आप चढ़ रहे हैं, चढ़ने से पहले क्या देखेंगे, बस में स्पेस है या नहीं हम बैठने के लिए, वो चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करेंगे, वी आर चेकिंग इज द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। चेकिंग वो एम्प्टी है या नहीं, वो कैसे हमें पता चलेगा, जब रियर की वैल्यू इक्वल टू n-1 हो जाएगी, रियर की वैल्यू n-1 हो जाएगी, इसका मतलब है क्यू फुल हो गया, तो हम प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। यहां से एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट। अगर फुल नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 में हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर अब हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल है या नहीं, मतलब अब क्यू एम्प्टी है या नहीं। पहले चेक किए क्यू फुल है या स्पेस अवेलेबल है, फुल है तो हम ओवरफ्लो करके बाहर आ जाएंगे, अगर एम्प्टी है तो हम फ्रंट और नल की वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि फ्रंट और रियर की वैल्यू नल होगी जब एम्प्टी होगा। इसका मतलब if front is equal to null then we are changing the values, front is equal to 0, rear is equal to 0, रियर और फ्रंट दोनों को हम 0 कर देंगे। अगर नहीं, यस if front is not equal to null, मतलब already we are inserted the values, it is not the equal, उस वक्त हम क्या करेंगे, सिर्फ रियर की वैल्यू चेंज करेंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, यहाँ पे हम चेंज करेंगे। इसके बाद स्टेप 3, जब वैल्यू इंक्रीज करने के बाद हम रियल पोजीशन के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है। हाउ वी कैन इंसर्ट, यूजिंग क्यू मतलब है क्यू एक अरे क्यू ऑफ रियल इज इक्वल टू आइटम, कौन सा आइटम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फाइनल स्टेप रिटर्न दिस इज एल्गोरिथम। फर्स्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। दिस इज वन अरे, here n is equal to 6 है। इनिशियली when we are created empty array, उस वक्त क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों इक्वल टू नल होंगे इनिशियली। अब यहाँ चेक कर रहे हैं फ्रंट और रियर इज इक्वल टू नल, इफ रियर इज इक्वल टू n-1, no, rear is equal to null, it come out of the step, here it will check next step,
इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, फ्रंट इज इक्वल टू नल, यस इट इज नल, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर की वैल्यू 0 होगा। अब क्या होगा, फ्रंट और रियर इसे आ जाए, फ्रंट और रियर आर हियर सेम, फ्रंट और रियर दोनों ही। नेक्स्ट एल्स व्हाट अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, थर्ड स्टेप q ऑफ रियर इज इक्वल टू आइटम, ये एक आइटम फॉर एग्जांपल मैं आइटम इंसर्ट करना चाह रहा हूं 2, यहां पे इंसर्ट। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा है, अगेन इट विल चेक हियर, नो रियर इज इक्वल टू n - 1, नो रियर इज 0, 0 is equal to 5, no it is false, come here, if front is equal to null, no front also 0 here, again it come to the third step, एक वैल्यू हम यहाँ पे it will check front is equal to null, no condition is false, then it execute the else part, else part में क्या होगा, सिर्फ rear वैल्यू चेंज होगी, rear is equal to rear plus 1, now rear is equal to 1, now third step we are inserting what element, एक एलिमेंट इंसर्ट किए 4, अगेन और एक एलिमेंट करना चाह रहे हैं, सेम स्टेप रिपीट होता जाएगा, 2 4 8 10 12 15 में यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं 14, यहाँ पे अब रियर वैल्यू, ये रियर वैल्यू है, रियर वैल्यू व्हाट इज रियर वैल्यू इज 5, अगेन अब एक न्यू वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे फर्स्ट, rear is equal to n minus 1 condition, rear कितना है, rear is equal to 5, n minus 1 is equal to 5, rear is equal to n minus 1, yes condition is true, क्योंकि पूरा q is full हो चुका है, तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे overflow, अब इसमें हम we cannot add any element here because it is full, now it exit come out of the function। ये इंसर्शन किस तरह से काम करता है, इनिशियली क्या कर रहे हैं, फ्रंट और रियर 0 को असाइन करेंगे अगर एम्प्टी है तो, उसके बाद सिर्फ रियर को बढ़ाते जाएंगे, फ्रंट तो उतना ही रहेगा, बढ़ाते बढ़ाते रियर तक आ जाएगा, जब रियर की वैल्यू भी n-1 हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगा, उसके बाद हम इंसर्ट नहीं कर सकते। दिस इज हाउ वी आर इंसर्टिंग द एलिमेंट, क्लियर। नाउ वी विल सी डिलीटिंग द एलिमेंट, कैसे हम ये, अब ये सेम अरे है, सेम अरे हम लेंगे, अब इसे डिलीट कैसे करेंगे, वी ऑलरेडी नो इन क्यू इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट द डिफरेंट एंड, अब हम इंसर्शन ये एंड में होगा, डिलीशन इस तरफ से होगा, फ्रंट के तरफ से, फ्रंट रिप्रेजेंट द डिलीटिंग एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है वो ये फ्रंट रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम इसका एल्गोरिथम चेक करेंगे किस तरह से डिलीट करेंगे। नाउ एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे डिलीट करने से पहले क्या ये अरे एम्प्टी है या नहीं, वी शुड चेक दैट, अगर एम्प्टी है तो हम डिस्प्ले कर देंगे ओवरफ्लो, मतलब सॉरी अंडरफ्लो, अब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वी कैन नॉट डिलीट इट। सो फर्स्ट स्टेप वी विल चेक इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, हमें कैसा पता चलेगा ये एलिमेंट सॉरी क्यू एम्प्टी है या नहीं, इस फ्रंट वेरिएबल से पता चलेगा। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल देन क्या करेंगे, वी विल प्रिंट अंडरफ्लो, अंडरफ्लो हो जाएगा, ये एग्जिट, वी कैन नॉट डिलीट एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप 2, अगर इट इज नॉट एम्प्टी तो हम क्या चेक करेंगे, कौन सा एलिमेंट डिलीट करना चाहे वो एलिमेंट को हम यहाँ पे पॉपअप कर लेंगे, आइटम इज इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, क्यू ऑफ फ्रंट कौन सा है, नाउ व्हिच एलिमेंट वी आर नीड टू रिमूव, दिस एलिमेंट टू क्यू ऑफ फ्रंट, दैट इज क्यू फ्रंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, क्यू ऑफ 0, क्यू ऑफ 0 क्या है वैल्यू 2, वो हम आइटम में सेव कर, अगर हम आगे इसे हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप में फ्रंट वैल्यू को हमें बढ़ाना है, जब ये डिलीट कर दिए अगला कौन सा एलिमेंट है उसे रिप्रेजेंट करें,
रियर वैल्यू तो 5 है। अगले हम चेक करेंगे इफ अब ये बढ़ाना है, फ्रंट वैल्यू बढ़ाना है और देखना है फ्रंट और रियर वैल्यू सेम है क्या, वो भी देखना है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू, ये था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप वी आर चेकिंग एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी और नॉट। सेकंड स्टेप जो आइटम हमें इफ इट इज नॉट एम्प्टी वी आर कॉपिंग दैट आइटम इनटू ए वेरिएबल आइटम। थर्ड स्टेप क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं अब जहां से हमने डिलीट कर रहे हैं फ्रंट और रियर एंड सेम है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट था, फ्रंट भी इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, रियर भी इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, एक ही एलिमेंट था, दोनों सेम थे। इसका मतलब दोनों सेम है, मतलब एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। जब हम एक को डिलीट कर देंगे, इसे डिलीट कर दिए तो अब देयर आर नो एलिमेंट इन दैट। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, फ्रंट और रियर को हमें नल असाइन करना है, नल वैल्यू असाइन करना है, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं बस। That we are checking here. If front is equal to rear, then we are assigning front is equal to null, rear is equal to null, rear is equal to null। दोनों हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं बस। अगर फ्रंट और रियर डिफरेंट हैं, इन दिस केस फ्रंट इज 0, रियर इज इक्वल टू 5, उस वक्त अगर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ फ्रंट वैल्यू को इंक्रीज करें। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 इंक्रीज करें। फाइनली स्टेप 4 क्या होगा, रिटर्न करें। स्टेप 4 रिटर्न, वी आर रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन। चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और वही सी दिस एग्जांपल, फर्स्ट वी चेक फ्रंट इज इक्वल टू नल, नो फ्रंट इज 0, रियर इज 5। ये याद रखिए, फ्रंट इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू 5। इनिशियल वैल्यूज हम चेक करें, फ्रंट इज इक्वल टू नल, नो कंडीशन इज फॉल्स। कम टू द नेक्स्ट स्टेप, ये आइटम इसमें सेव कर रहे हैं 2, उसके बाद सेव कर रहे हैं मतलब ये डिलीट कर रहे हैं, नो वी आर डिलीटेड। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं फ्रंट और रियर सेम है क्या, नो फ्रंट इज 0, रियर इज 5, कंडीशन इज फॉल्स, इट एग्जीक्यूट द एल्स पार्ट, it just increase the front value, front value increase करेगा, now front become 1 हो जाएगा, तो अब front represent कर रहा है rear 1 position, next position। Again we want to delete another element, same if we check here, front is equal to null, condition is false, item is equal to q, means we are deleting this element here। Next condition we are checking, front is equal to rear, 1 is equal to 5, condition is false, else part, just we are increasing the front value, और front हो जाएगा 2, no it represent front, इसे represent। इसी तरह हम एक एक एलिमेंट डिलीट कर दिए, we deleted this and this। now finally when we deleted this, the front represent to rear here। now front value is 5। again if you want to delete the element, front is equal to null, no condition is false, item is equal to q, we are removing this element here, we are removing it। now we are checking front is equal to rear, front is equal to rear, yes condition is true, both are 5। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, पूरा q empty हो चुका है। now we are assigning front is equal to null, rear is equal to null, क्योंकि जब empty हो जाता है तो हमें पता चलना चाहिए ना कि ये क्यों empty हो चुका है, वो पता चलेगा जब फ्रंट और रियर की वैल्यू नल हो। तो वी आर डिलीटेड, वी आर असाइनिंग फ्रंट इज इक्वल टू नल, रियर इज इक्वल टू नल, अब दोनों की वैल्यू हो जाएगी नल, नल रिटर्न कर। अगेन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे फिर शुरू से डिलीट करना चाह रहे हैं, अब फ्रंट की वैल्यू नल है, नो इफ यू वांट टू डिलीट एनी एलिमेंट, ये फंक्शन कॉल किए तो चेक करेगा फ्रंट इज इक्वल टू नल, फ्रंट इज इक्वल टू यस कंडीशन इज ट्रू, ये एग्जीक्यूट करेगा
वो अंडर फ्लो, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, हम क्यू से डिलीट करेंगे। ये है algorithm for deleting the element from the queue. Clear? By using this algorithm you need to write the program. इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये किस तरह से ये काम करने के लिए फॉर लूप का यूज करके या व्हाइल लूप यूज करके आप ये कंडीशंस, ये सारे कंडीशंस यूज करके आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। You can write the program to insert or to delete the element from the queue. क्लियर? ये था क्यूज के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट होगा, if you have any doubt you can ask me. Thank you.